Hello everyone. So let me come across again simplification of linear inequality. Now till yet in the previous module we had gone through inequality of this format and then this format already, and even you were being informed about in case you are getting any real number on this side, so it is meant to be shifted on left hand and then we have to simplify. I'll be making an initiation with this particular type and then हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे. ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलरली डिस्कस करना है. लेट वी चेक नाउ व्हाट इज दैट प्रॉब्लम गिवन टू यू. या फाइन. ओके, सपोज आई सेड यू कि आप यहाँ पे इसे सॉल्व करें. देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम आई वांट टू सिंप्लीफाई ऑन दिस बेसिस, देन हम अगले कैटेगरी की तरफ चलेंगे साथ में ही. फाइन. नाउ लुक, आई वांट टू सिंप्लीफाई इट. तो हाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट? Now you know what is the criteria. You will be shifting one on left hand. So if you will be shifting one on left hand, it will become -1. Now once we are done up to here, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? Now you need to take LCM here. Obvious बात है, आपको यहाँ पे LCM लेके चलना है. I'm getting x plus 2 here. So accordingly what I will be getting here? X plus 8. Let you multiply here. Minus x plus minus will become minus. Then यहाँ पे क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया. अब यहां पे क्या है? x और x आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो 8 माइनस ऑफ 2 क्या आ गया? 6 आ गया. दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. एंड नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई इट? आई एम नॉट गेटिंग एनी वेरिएबल नाउ हियर. यू कैन चेक. आई टोल्ड यू देयर क्योंकि वी नीड टू हैव दिस फॉर्मेट हियर. आई शुड हैव वेरिएबल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, बट नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी वेरिएबल हियर. तो हाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई इट? ओके, लेट यू थिंक अपॉन दिस थिंग हियर कि क्या मैं अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दूँ, इफ आई डिवाइड बाय 6 व्हाट आई विल गेट हियर? अगर मैंने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, दिस इज समथिंग आई शुड बी गेटिंग हियर. एंड नाउ व्हाई आई डन दिस थिंग हियर? आई टोल्ड यू वन रूल इन इनइक्वालिटीज. व्हाट वाज दैट रूल? इफ यू रिमेंबर, सुनो, इफ 1 upon x is positive, then x will also be a positive value. You should go through your previous module, you will find it there. Fine. If x is negative, then 1 upon x will also be negative. It is something we are done. Okay, now let we continue toward this particular concept here. If reciprocal is turning out to be positive here, then one thing is obvious, ये भी यहाँ पे क्या आएगा? Positive ही आएगा. And immediately what you will get from here? I'll be getting x value bigger than minus of 2. And because I'm getting now x value bigger than minus of 2, if you now represent this on number line, here I'm having minus of 2, there is no equality sign, तो हम यहाँ पे इसको open end पे लेके चल रहे हैं. And then I want to have a value bigger than minus of 2, तो I need to be on this side. So I can move up to infinity because we are now on the right hand side of number line. तो accordingly I can move till infinity here. तो अगर अब आप यहाँ पे infinity तक move कर सकते हो, now this is the solution set. तो what you know I can say here? x किसको belong करेगा? Minus of 2 to infinity. Fine. So that is how you need to simplify if any such problem is coming to you. Now, after getting this work done, let me come across our technique which we need to discuss for today. सुनिए, suppose now I'm having inequality of this format. Let me take on to this thing. Suppose मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि you have been given here x minus 5. Once again you need to simplify it. फिर वही काम. You will not be cross multiplying as I had directed you in the previous 2 modules. तो हमें इसको simplify करना है. How this can be simplified? Like in the previous module, okay, हमारे पास 2 cases थे, यहाँ पे भी 2 cases आपके generate होंगे. अब 2 cases कैसे generate होंगे? Let me check. When I can say x upon y is negative,
और व्हाट आई मीन बाय कि फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, या तो देखो ये अगर मैं कहता हूँ कि कहीं पे फ्रैक्शन आपके पास नेगेटिव है, डेट मीन इधर न्यूमरेटर क्या है प्लस एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है नेगेटिव, डेट इज वन थिंग। और व्हाट आई कैन से न्यूमरेटर नेगेटिव है बट डिनोमिनेटर क्या है पॉजिटिव। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। सोच के देखो, एक फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव और ये क्या हो पॉजिटिव। तो आई नीड टू वर्क ऑन दिस बेसिस हियर। अगर मैं इसके बेसिस पे वर्कआउट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे इसको चेक करूँ, यहाँ पे लुक ये फ्रैक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर ये फ्रैक्शन यहाँ पे नेगेटिव है तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, या तो देखो ये क्या है पॉजिटिव एंड नीचे वाला क्या है नेगेटिव, या फिर क्या होगा और हाँ जी पहले ऊपर वाला क्या लिया था पॉजिटिव, अब ऊपर वाला क्या लेके चलेंगे नेगेटिव एंड नीचे वाले को क्या लेके चलेंगे यहाँ पे बिगर देन 0 लेके चलेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो यहाँ पे। फाइन, तो ये फ्रैक्शन नेगेटिव कब आएगी, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये देखो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, और अगर एक नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है आपके पास। ये हमारे पास यहाँ पे काम चल रहा है। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने प्रीवियस सम भी किया था। लेट वी चेक कि हमारे पास यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन क्या आता है। एंड नाउ बी वेरी केयरफुल बिकॉज इनमें से एक पार्ट आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग यू विल कम टू नो राइट नाउ। सपोज मैं इसको सोल्व किया, यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा टेल मी, x बिगर देन 5, शिफ्टिंग ही करना है। ओके, इसको ट्रांसफर किया तो यहाँ पे क्या आएगा x लेस देन -2। फाइन, नाउ कमिंग अक्रॉस सेकेंड पार्ट, x लेस देन 5, x bigger than 2। Anyhow, now let me do one thing here। हम यहां पे नंबर लाइन की बात करते हैं। अब इस नंबर लाइन पे आई एम हैविंग टू नंबर्स विद मी -2 and 5 to deal with। Now here is -2, here is 5। One end of this number line will move up to infinity and this end will be moving up to -infinity। Now think about what I'm saying here। I'm saying x is bigger than 5। x bigger than 5 mean I'm having value bigger than 5 this side, 5 is not included। And then I'm saying x less than -2, so I need to be on this side। Again there is no equality, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इधर I'm getting x bigger than 5 एंड क्या है साथ में -2 से छोटा। अब मेरे को सिर्फ अपने आप लोग सोच के बताओ, ऐसा कौन सा x वैल्यू है जो 5 से तो बड़ा हो लेकिन -2 से छोटा हो। सोचो, आई वॉन्ट टू हैव वन सच वैल्यू ऑफ x। मैं आपको कहता हूँ x 5 से बड़ा है लेकिन -2 से छोटा है, क्योंकि हम करते क्या है बेसिकली हम दोनों में कॉमन सोल्यूशन लेके चलते हैं। अगर आपको याद हो जो हमने प्रीवियस केसेस में किया था, वहां पे क्या हो रहा था, अगर मेरे पास प्रीवियस केसेस को मैं लेके चलता हूं, मेरे पास कुछ ऐसा होता, या तो वैल्यू -2 से छोटी होती या फिर 5 से छोटी होती, तो दोनों जगह पे कॉमन क्या आया था, कॉमन ये आ जाता। नॉट डू दे हैव एनीथिंग इन कॉमन अमंग देम, नो, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। आई कांट हैव वन सच वैल्यू ऑफ x ओके विच इज बिगर देन 5 एंड लेस देन -2। And because I'm failing to get one such value, I'll say I'm not going to get any value of x satisfying this particular condition। तो यहाँ पे क्या है, no such value of x is obtained that satisfies satisfies 1। ऐसा कोई x का वैल्यू ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। मैं कहता हूं मेरे को यहां से एक ऐसा x का वैल्यू बताओ जो 5 से तो क्या हो बड़ा हो लेकिन -2 से छोटा हो, तो ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे असेस नहीं हो पाएगा बच्चे, पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो डेट इज वाई वी हैव टू डिनाई इट। ये हमने यहाँ पे डिनाई कर दिया। जब हमने यहाँ पे इसको डिनाई किया, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, व्हाट लाइज अहेड देयर।
Okay, is there something you are going to get? Here is, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस साइन था बच्चे प्लीज, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, एक तो माइनस ऑफ 2 है, एक यहाँ पे क्या है 5 है, एक तो यहाँ पे क्या माइनस ऑफ 2 और एक यहाँ पे क्या है 5 है. अब सुनो यहाँ पे आई एम सेइंग आई शुड हैव x वैल्यू बिगर देन माइनस ऑफ 2. लुक, बिगर देन माइनस ऑफ 2 दिस साइड, एंड देन x लेस देन 5, ये 5 है तो 5 से छोटा. Now do you think possibility of getting any x value which is common to both? जो माइनस ऑफ 2 है, माइनस ऑफ 2 के अंडर ये पूरा नंबर लाइन आता है, that is moving up to infinity. 5 के अंडर आपके पास ये पूरा नंबर लाइन आता है जो कि माइनस इन्फिनिटी तक मूव करता है. Now do they have something in common? Yes, there is. You can check. What is that? ये है. So what I can say here, if I want to simplify, if I want to find a common solution for both of these inequality, that will turn out to be equal to this one. तो ultimately I now need to unite. मेरे को दोनों को इकट्ठा करना है, जैसे मैं प्रीवियस प्रॉब्लम्स में कर रहा था. अब यहाँ पे तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यू देयर, तो डेट इज द ओनली लेफ्ट सोल्यूशन विद यू. ओके, तो डेट्स ऑल आई कैन से. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, देयरफॉर जो हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड सोल्यूशन दोनों के लिए बन जाएगा वो ये बन जाएगा. आई एम नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन हियर, तो डेट इज समथिंग टू बी केप्ट एज साइड, not to be considered for the solution point of view. तो I will be getting there only this particular interval. तो ये एक ऐसा इंटरवल है, अगर मैं इस इंटरवल के इनसाइड कोई भी पॉइंट लेके चला तो वो आपके पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. यू कैन चेक. लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को माइनस ऑफ 2 और 5 के बीच में चलना है, आई कंसिडर 3. आप 3 यहाँ पे फिल करके देखो, व्हाट विल हैपन हियर, 3 minus 5, what I'm getting, minus of 2 upon 5. And what is that? Negative in sign. That is how things are to be done here. आप इस तरीके से यहाँ पे काम करके चलेंगे. सपोज मैं लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल हेयर. ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. लेट मी चेक. ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज यू हैव बीन गिवन हियर फाइन. अब अगर मैंने आपको यहाँ पे कहा x minus 5 upon x minus 8 less than 0 here, तो what do you think what can be done here? अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ x minus 5 upon x minus 8 less than 0 है, when fraction will be negative, let me take on to this problem here. सोचो मैं अभी ये फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा, जब या तो x minus 5 क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, दैट इज वन थिंग. और क्या होगा जब x minus 5 क्या बचे, हाँ जी नेगेटिव, एंड ये क्या है पॉजिटिव. तो एट अ टाइम एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक यहाँ पे क्या है प्लस, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. एंड नाउ लेट यू डू वन थिंग हियर, इसको सोल्व करो. यहाँ पे क्या आएगा x बिगर देन 5 एंड x लेस देन 8. यहाँ पे क्या आएगा इसको चेक करते हैं, x लेस देन 5 एंड x यहाँ पे क्या आएगा बिगर देन 8. Let me take on to both of these situation one by one. Now number line I need to take 5 and 8 here. I'm saying I should have x bigger than 5 this side, and then I'm saying x less than 8. I'll be moving this side. So what is the common part of number line for both of them? This one. There is no equality, so that is why these are not to be included. So what is the x value you are going to get here? Anything between 5 and 8. So that is what you are going to get from this part. Now coming towards second one. Fine. तो यहाँ पे क्या है, again I'm having 5 and 8 with me. Now this end is approaching infinity. This one is approaching minus infinity. Now listen carefully what I'm saying here. I'm saying x less than 5. I need to be on this side. And then I want to have x value bigger than 8. Now do you find any part in common for both of these inequalities? You can check. Is there any part of number line that is common to both of them? No.
जो नंबर यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे नहीं आ सकते, जो यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं आ सकते। मोरओवर आई कांट हैव अ नंबर दैट इज बिगर देन 8 एंड लेस देन 5। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बच्चे 8 से बड़ा हो लेकिन 5 से क्या छोड़ा हो। मीन आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन हियर। यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन आपके पास पॉसिबल नहीं है। और व्हाट आई कैन से, नो वैल्यू ऑफ x कैन बी फाउंड। That satisfies both. तो the only solution I'm going to get is this one. तो अगर मैं दोनों को यहाँ पे अब क्या क्या कोलैबोरेट किया तो what is the required solution? I'll be getting this one as my required solution. That is something you need to now keep in your mind. Fine. In the upcoming module we will come across more problems then with equality sign along with. Fine. तो till that time you can definitely practice such problems. ये concept बहुत ही आसान है। रिमेंबर whenever there is a less than sign, okay, तो वहाँ पे जो एक पार्ट है वो हमेशा आपके पास रिजेक्शन मोड में जाएगा ही जाएगा और एक ही एक्सेप्ट होता है एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन। ओके, दैट पार्ट विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन ऑलवेज। फाइन, थैंक यू।